السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. پاکستان میں کم عمر میں شادی قانوناً جرم ہے، مگر پاک پتن پولیس 15 سالہ نکاح شدہ لڑکی کی رخصتی کرنے پر والدین پر دباؤ ڈالنے لگی. دنیا بھر میں مقیم سکھ کمیونٹی نے بھارت میں اپنی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی بے ادبی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. ڈپٹی کمشنر اٹک آفس سے چند قدم کے فاصلے پر ضلع کونسل ہال احساس کفالت پروگرام کا بڑا ہجوم دیکھنے کے مناظر ملتے ہیں. سینٹرل اسٹیشن پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بھکر کے زیر اہتمام 4 مئی انٹرنیشنل فائر فائٹر ڈے کے حوالے سے سیمینار اور فلیگ مارچ. بہاول نگر میں عالمی یوم صحافت کے حوالے سے پریس کلب اور PFUJ کے زیر اہتمام تقریبات. شہداء صحافت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا گیا. ننکانہ صاحب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نواحی قصبہ موڑ کھنڈا میں اسکریننگ کا عمل مکمل. 41,300 افراد کی اسکریننگ کی گئی. بہاڑی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 1.5 ماہ قبل باقی اداروں کے ساتھ نادرا آفس بھی بند کر دیا گیا تھا. احساس کفالت پروگرام میں عوام کی بہت بڑی تعداد کے انگوٹھے میچ نہ ہو سکے. پاک پتن میں نادرا آفس کھلتے ہی شہریوں کا جم غفیر. حفاظتی تدابیر کے بغیر جا پہنچا. لائن نہ لگنے پر آفس میں شدید رش. شہریوں کی دیوار پھیلان کر دفتر میں داخلے کی کوشش. حکومت پاکستان وزیر اعظم احساس کفالت امدادی پروگرام کے تحت غریب دہاڑی دار مزدور اور غریب بیوہ بوڑھی معذور خواتین کو امدادی رقوم نہ ملنے کی وجہ سے غریبوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے اور فاقوں کی نوبت. بھکر پولیس کی مختلف تھانوں میں کارروائی. SHO تھانہ سٹی بھکر محمد اختر بگا نے موبائل چور. SHO تھانہ حیدرآباد محمد یاسر سیال نے مختلف اشخاص سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا. زمانہ جتنی مرضی ترقی کر لے، وقت مختلف کروٹیں تبدیل کر لے، انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہر دور اور ہر زمانے میں اہمیت برقرار رہتی ہے. RPO ملتان وسیم احمد خان نے لودرا کا دورہ کیا. کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ڈیوٹی دینے والے پولیس کے جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور دوستانہ ماحول میں گپ شپ بھی کی. لودرا میں کرونا لاک ڈاؤن میں مساجد کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات دیکھنے کے لیے DPO سید قرار حسین نے لودرا کی مساجد کا اچانک معائنہ کیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. نواحی گاؤں 307 EB کے رہائشی محمد اسلم ولد عطا محمد نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میری بیٹی عائشہ بی بی جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے، کچھ عرصہ قبل اس کا نکاح چچا زاد لڑکے طارق محمود ولد عاشق علی سے اس بنا پر ہوا کہ مذکورہ لڑکی کے والدین اپنے اسی داماد سے ادھار رقم لے بیٹھے تھے اور اب رقم ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، جبکہ کچھ عرصہ قبل داماد نے پیسے واپس نہ کرنے کے عوض اسے والدین سے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کا مطالبہ کر دیا. غریب محنت کش والدین نے ادھار پیسے واپس نہ مانگنے کی بنا پر اپنی کمسن لڑکی کا نکاح کر دیا، جبکہ نکاح کے موقع پر معززین دیہا کے سامنے اس بات کا اقرار دونوں فریقین نے کیا کہ لڑکی کی رخصتی اس وقت ہوگی جب لڑکی کی عمر 18 سال ہوگی، جو کہ قانونی اور شرعی عمل ہے. اب داماد غریب محنت کش والدین پر دباؤ ڈالنے، ڈرانے دھمکانے پاک پتن پولیس سے ساز باز ہو کر والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں. والدین اور سماجی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے
हुए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर सरदार महिंदर पाल सिंह ने कहा कि भारत में आए रोज़ हुकूमती इमा पर हमारी मुक़द्दस मजहबी किताब की बेअदबी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अगर पहले होने वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दी गई होती तो शायद ये वाक़यात रुक जाते। उन्होंने कहा कि भारतीय पंजाब में होने वाले हालिया वाक़े ने पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। वक्त आ गया है कि इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दिलवाई जाए। सरदार महिंदर पाल सिंह ने कहा कि भारत में सिखों समेत तमाम अक़लियतों के साथ इम्तियाजी और ज़ालिमाना सलूक मामूल बन चुका है, जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने भारतीय हुकूमत और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारान से इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और सज़ा देने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अब्दुल जब्बार गुज्जर का जमालपुर कायमपुर में गिराव फरोशों के खिलाफ एक्शन और भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी पर होलसेल डीलर्स, किराना स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पर भारी जुर्माने आयद किए। 47 रुपये लीटर वाला मिट्टी का तेल 150 रुपये लीटर बेचने वालों को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के पैमाने चेक किए। पैमाने की कमी पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स को जुर्माने और मजमूई तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए। बहावलनगर से वसीम सरवर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तख्त महल थाना के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। ट्रैफिक हादसे में 45 साल अब्दुल मजीद जाँ बहक, जबकि उसका हकीकी भाई शदीद ज़ख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाला अब्दुल मजीद 11 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। इत्तला के बावजूद पुलिस मौके पर पहुंची और ना ही रेस्क्यू टीम मदद को आई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। मुलजिम की फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालिबा। कानून से कोई बालातर नहीं, मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एमरजेंसी एहसास कफालत प्रोग्राम में मुतासरीन की अंगूठों की तस्दीक ना होने के पेश नज़र वफाकी हुकूमत के अहकामात पर मुल्क के मुख्तलिफ नादरा सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जबकि चमन नादरा सेंटर का ऑफिसर गैर हाजिर है और कोरोना वायरस से बचाव के कोई इंतजामात भी नहीं किए। उसका मजीद अहवाल जानते हैं चमन से अपने नुमाइंदे हज़रत अली अत्तार से। जी हज़रत अली अत्तार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के अहकामात पर चेयरमैन नादरा ने मुल्क भर के तमाम नादरा सेंटर्स खोलने का फैसला किया है, जो कि मैं इस वक्त चमन नादरा सेंटर में मौजूद हूँ कि नादरा दफ्तर जज्वी तौर पर खोला है। ये सिर्फ इन अफराद के लिए खोल दिया है जो इमरजेंसी एहसास कफालत प्रोग्राम में अंगूठों की तस्दीक नहीं हो पा रही थी। अब जो कि अंगूठों की तस्दीक का अमल शुरू नहीं हो चुका है और मुतासरीन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी की सहूलत फराहम नहीं की गई है। कोई सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का बंदोबस्त नहीं किया गया। सिर्फ सोशल फासले पर लोगों को बिठाया जा रहा है। नादरा सेंटर में शनाख्त कार्ड के असूल के लिए टोकन नहीं काटे जा रहा है। इस पर 20 मई के बाद अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ताहम चमन नादरा मुतासरीन के अंगूठों की तस्दीक का अमल जारी नहीं हुआ, क्योंकि अमला अभी तक गैर हाजिर और काम शुरू नहीं किया है। जी अटक से रिपोर्ट साजिद अली खान ब्यूरो चीफ की शामिल करते हैं। एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया कोरोना से बचाओ, ज़िला अटक भर में गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों और देहातों में आवाम के हजूम की रोकथाम के लिए हरकत करते नज़र आती है, मगर दूसरी जानिब ज़िला काउंसिल हॉल अटक एहसास कफालत प्रोग्राम आवाम का हजूम देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी का मंजर हो। डिप्टी कमिश्नर अटक अली अन्नान कमर इस तरह के हजूम का फौरी नोटिस लें। भक्कर से ब्यूरो चीफ जुबैर अली की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल स्टेशन पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 भक्कर के ज़ेर एहतमाम 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के हवाले से सेमिनार और फ्लैग मार्च की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर ताहिर महमूद ने इस प्रोग्राम की सदारत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और फायर फाइटर डे के हवाले से इस दिन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अगर हम हर घर और इमारत में फायर सेफ्टी आलात नस्ब करें और साथ ही मॉक एक्सरसाइज और तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें तो आग के हादसात में खातिर खाक कमी लाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि रेस्क्यू 1122 भक्कर ने गुज़श्ता साल कई मिलियन से ज़ायद का नुकसान होने से बचाया।
बहावल नगर से हमारे नुमाइंदा वसीम सरवर के मुताबिक आलमी योम सहाफ़त के हवाले से प्रेस क्लब बहावल नगर और PFUJ के बहावल नगर के ज़ेर एहतमाम 2 बड़ी तकरीबात हुई। सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िले सदर तारिक हफीज़, जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद साबरी ने कहा कि PFUJ मुल्क गिर सहाफ़ियों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो कायद राना अजीम और GM जमाली की क़यादत में सहाफ़ती हुकूक़ के लिए अमली तौर पर मैदान में है। तारिक इस्माइल, डेप्यूटी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा ने कहा, मौजूदा हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। कोरोना के बाइस दीगर तबकात की तरह सहाफ़ी भी मुतासिर हुए हैं। ज़िले जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद अहमद नदीम ज़मान शाह ने कहा, सहाफ़ी मज़लूम तबकात की आवाज़ हैं जिन्होंने हमेशा इलाकाई मसाइल को उजागर करने के साथ ज़िले भर में मुस्बत इक़दामात को भी नुमाया किया है। ननकाना साहब से मलिक जाफ़र की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर निगरानी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हाफिज शकील अहमद की सरबराही में नवाही कस्बा मोड़ खंडा में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए महकमा सेहत की 22 टीमें पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। टीमों ने 3 दिन के दौरान 5,952 घरानों के 41,310 अफराद की स्क्रीनिंग की। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नवाही कस्बा मोड़ खंडा के अचानक दौरे के दौरान किया। विहाड़ी से अब्दुल्ला मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से बंद नादरा ऑफिस खुल गया। ऑफिस खुलने के पहले दिन अवाम का जम्मे गफीर उमड़ पड़ा जिसने समाजी राबितों की परवाह न करते हुए कोरोना फैलाव के खदशात पैदा कर दिए हैं। नादरा ऑफिस खुलने की इत्तला पाते ही एहसास कफालत प्रोग्राम में अंगूठे मैच ना होने वाले सैकड़ों अफराद नादरा ऑफिस पहुँच गए, लेकिन नादरा ऑफिस इंतजामिया ने भी समाजी राबिता रखने के कोई इंतजाम न किए जिसकी वजह से लोग एक दूसरे में घुसे नजर आ रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लाइन ना लगने पर ऑफिस में शदीद रश, शहरियों की दीवार फैलांग कर दफ्तर में दाखिले की कोशिश, हिफाजती तदाबीर और समाजी फासले को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। पाक पतन में नादरा ऑफिस खुलते ही शहरियों का जम्मे गफीर हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज करते हुए ऑफिस जा पहुँचा। शहरियों के शदीद रश के बायस ऑफिस के बाहर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। नादरा ऑफिस में साइलिन के हजूम के बायस कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। कहरोड़ पक्का से मलिक शबाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल मसाकोटा तहसील कहरोड़ पक्का में गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीब लाचार माजूर बेवा खवातीन को वज़ीर आज़म के एहसास कफालत इमदादी प्रोग्राम के तहत रकूम ना मिलने की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गरीब मासूम नन्हे बच्चे फाके करने पर मजबूर हो गए। इस इलाके में अमीरों वडेरों ने अपने नौकरों को इमदादी रकूम दिलाई हैं जो कि इस रकम के मुस्तहिक नहीं हैं। इन बेवा खवातीन ने रो रो कर जोलियाँ उठाकर पुरजोर शदीद एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म एहसास कफालत इमदादी प्रोग्राम से मस्सा कोठा के गरीब दिहाड़ीदार मजदूर और गरीब मुस्तहकीन बेवाओं के शनाख्ती कार्डों की सही तरीके से जाँच पड़ताल को जल्द से जल्द मुकम्मल करके हम गरीब आवाम दिहाड़ीदार मजदूर और बेवा लाचारों को हमारा हक दिया जाए, वरना हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे फाकों की जद में आकर मर जाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमती अफसरान, ज़िले अफसरान और हुकूमत के वज़ीर आज़म पर होगी। मुरीदके से मोहम्मद ज़िशान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अहकामात और लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जियाँ जारी। थाना सिटी के और थाना सदर के इलाके मेन बाज़ार सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। मुरीदके में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी। पुलिस की सरबराही में मुबैना तौर पर हाफ और फुल शटर खुलवा कर कारोबार होने लगा। बासर दुकानदार पुलिस की मिली भगत से कारोबार खोलने लगे। पुलिस ने बड़े दुकानदारों को खुली छूट दे रखी है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के बायस मेन बाज़ार में और दाऊके में बाज़ार में हज़ारों ख़रीदार बग़ैर हिफाजती इंतज़ामात के ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है। पुलिस और इंतज़ामिया की लापरवाही के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा। शहरियों का कहना है कि पुलिस और इंतज़ामिया की लापरवाही पर वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें।
बक्कर से ब्यूरो चीफ जुबैर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया के विजन के मुताबिक बक्कर पुलिस समाजी बुराइयों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस ज़मन में SHO सिटी बक्कर मोहम्मद अख्तर बग्गा ने मोबाइल चोर सुहेल नवाज सिकना बरकत वाला दरिया खान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से धर लिया, जिसके कब्जे से 4 अदद मोबाइल, नकदी रकम 7,500 रुपये, कुल मालियत 1,32,000 बरामद कर लिए, जिसके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विहाड़ी से जफर इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 50 साल से इस काम से वाबस्ता ये कारीगर दरियाए सतलुज के किनारे से ताना काट कर लाते हैं। इस दौरान उनके हाथों के अलावा जिस्म पर जख्म भी आ जाते हैं, लेकिन ये सख्त जान मेहनत कश हर किस्म की मुश्किलात का सामना करते हुए सिरकियाँ और चिकें तैयार करते हैं। सिरकियाँ मकानों की छतों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जबकि चिकें बरामदे और कमरों के दरवाजे पर लटका कर पर्दे का काम देती हैं। जिन इलाकों में शदीद गर्मी या सख्त सर्दी पड़ती है, इन इलाकों के लोग इन चिकों को बरामदे और कमरों के दरवाज़ों पर लटका कर गर्मी की शिद्दत और सर्दी की सख्ती से ख़ुद को महफूज रखते हैं। ये कारीगर चिकों पर मुख्तलिफ रंगों और फूलदार कपड़ों के ज़रिए इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से हम शदीद मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हुकूमत हमारे लिए भी किसी पैकेज का ऐलान करे। लोधरा से राना अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अहमद खान ने कहा, पुलिस जराइम पेशा अनासिर और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है और उनकी फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा हैं। RPO मुल्तान ने पुलिस मुलाजमीन और एहलकारों में रमज़ान गिफ्ट हैम्पर तकसीम किए। तकरीब में DPO सैयद करार हुसैन और डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी भी शरीक हुए। बावर तकरीब में शहीद इरफान बुखारी की वालिदा को बतौर मेहमान खुसूसी बुलवाया गया। RPO, DPO और डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा इफ्तारी भी की। RPO वसीम अहमद का रमज़ान और कोरोना ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस जवानों के खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। RPO वसीम अहमद ने पुलिस जवानों के साथ घुल मिल गए और मसाइल दरियाफ्त किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 44 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।